So good morning students. In today's lecture we are going to study bending of the sheet metal. So far we have studied shearing, drawing, embossing, quinning operations of the sheet metal, and in this lecture we are going to see the bending operation which is performed on sheet metal. So can anybody tell what is the meaning of bending? सर वो उसका मोड़ना किसी चीज का सर बेंडिंग बोल सकते हैं Yeah, 0 to डिग्री से बढ़ form के a sheet or give it angular shape in angle, that is known as bending. So definition is simple, but there are different kinds of bending processes which we will study in this lecture. Okay. Bending is a metal forming process by which sheet metal is plastically deformed, by which sheet causing it sheet metal is plastically deformed. Whatever operations which we are going to perform on sheet metal, in all cases plastic deformation takes place, where it is drawing operation, shearing operation, embossing operation, bending operation. In all cases, plastic deformation takes place. Plastic deformation means the deformation occurred in the sheet is of permanent nature. That's why it is known as plastic deformation. Okay. So sheet is deformed plastically, causing it to bend at an angle and form the desired shape. So bending of the sheet at an angle and formation of the sheet is known as bending operation. The material is stressed beyond the yield strength, but below the ultimate tensile strength. So can anybody tell the reason of this? What is written here? It is written that the sheet metal should be stressed or force should be applied by the punch onto the sheet metal beyond the yield strength of the sheet metal. But it should not be equal to or more than the ultimate tensile strength of the sheet metal. If we continuously go applying the force by punch onto the sheet metal and that force comes closer to the ultimate tensile strength, then fake fracture will occur. So if our purpose is to cut the sheet metal in two parts, then obviously we have to apply the force up to ultimate tensile strength of the sheet metal. But on the other hand, if we want to they give a shape only and we do not want to cut the sheet metal, then we have to apply the force which is slightly more than the yield strength of the sheet metal plank, but it should be less than the ultimate tensile strength of the sheet metal. Okay. The surface area of the metal does not change considerably. So I have shown you two figures here. One is case of V bending, another is case of simple edge bending. This is the figure of edge bending, where bending of the sheet is taking place at one edge. And this, since we are going to form a V shape into the sheet, that's why this is a case of V bending. So in this case, whether we perform V bending, edge bending, or other kind of bending operation, then there is no appreciable change in the surface area of the sheet metal, which takes place by performing bending operation. जब हम बेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया उसका नहीं बढ़ता है. But on the other hand, if we perform stretching operation or stretch forming operation, in that case there is considerable change in the surface area. Okay, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेंडिंग के दौरान सीट के सरफेस एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है. यदि होता भी हो तो माइनर है, बहुत माइन्यूट चेंजेस होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट कंसिडरेबली. In bending, deformation about one axis takes place. Consider either this figure or this figure. The sheet metal is going to bend along this axis. ठीक है ना? In this case, it is going to bend along this axis. So deformation of the sheet in bending takes place along one axis only. Okay. Bending is used to produce a V shape, U shape, channel shape along a straight axis in the sheet metal. हम चाहें तो इसको V shape दे सकते हैं, U shape दे सकते हैं, चैनल यानी C बना सकते हैं, सेंट्रिक शेप, कुछ भी यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं which can be performed during
bending operation of the seat. ठीक है ना? So as it is written, bending is metal forming process. Obviously, it is a metal forming process where metal is deformed plastically, and sheet is given a bent angle, or it is bent at an angle. ठीक है ना? सीट को हम किसी एंगल पे बेंड कर सकते हैं. वो एंगल 30 डिग्री का हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है. सीट कैन बी रोल्ड, seat can be we can form a U shape also. ठीक है ना? We can perform bending at an angle by 90 degree or other angle also. ठीक है? सरफेस एरिया इस केस में बिल्कुल नहीं बढ़ता है, बट इफ वी आर गोइंग टू परफॉर्म स्ट्रेस फॉर्मिंग ऑपरेशन, इन दैट केस सरफेस एरिया इज चेंज कंसिडरेबली. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, दैट डिफॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस अलोंग वन एक्सिस ओनली. ठीक है ना? जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो सीट का डिफॉर्मेशन है, दैट विल टेक प्लेस अलोंग वन एक्सिस ओनली. बाय परफॉर्मिंग एंड बेंडिंग ऑपरेशन, we can make a V shape, or we can change the shape of the seat into a V shape, U shape, channel, or any other shape as desired. Okay, so this is the brief introduction about seat bending. Now, as all other seat metal forming operations, in this case the tool uses a die tool, which is a combination of a die and a punch. In this case, the configuration of the tool, that means die and punch, for bending, I'm going to change it. There is some, there are different types of bending operations also. So the configuration of the tools for types of bending are almost identical. That means both will be having similar shape and size. One will be the female member, another will be the male member. You can see this figure also. In this case, a V shape is formed into the die. Die is having a cavity of V shape, and almost this punch is having the same shape. So when we have to perform bending operation, in that case, the tools used for performing bending operation, that means die and punch used for performing bending operations, are having identical shape and size or identical configuration. Seat blank is held and located properly on a die. Whenever we have to perform seat bending operation, then it has to be placed. Seat metal blank has to be placed over die, and it has to be held properly. What happens when we perform seat bending operation? Then there is change in the position of the seat and seat also. You can see from this figure. Initially, this seat is straight, which has been placed over top of the die. Punch is going to apply the force. When punch apply the force and operation completes, then there is change in the position of the two edges of the seat. You can see from this figure also. So a rigid support is not needed in that case, but it has to be held properly using some guide pins also. Okay. So seat blank is held and located properly. Seat blank वहाँ पे properly locate किया जाता है. Dies are usually stationary. Okay. Out of die and punch, it is the punch which applies the force onto the sheet metal for performing deformation on the sheet metal. But in certain cases, die punch remains stationary, and it is the die which apply the force for deformation. So whether it is the die which is going to apply the force, or it is the punch which is going to apply the force, the result is the same. That means we are able to perform deformation of the seat, or we are able to perform bending of the seat. In most of the cases, it is the punch which apply the force and die remains stationary. That's why it is written here that dies are usually stationary. But in some cases, in few cases, dies can apply the force. In that case, punch will remain stationary. Punch is attached to the ram of the machine by clamps and moved to exert the bending force. So when punch is applying the force, in that case, it is written that it is mounted on the bottom portion of the ram and apply the force for performing bending operation. Okay. तो हम डाई या पंच जो भी इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली जो सीट रहती है दैट इज प्लेस्ड ओवर टॉप ऑफ द डाई, और जो बेंडिंग के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वो
मोस्टली पंच ही अप्लाई करता है। कुछ एक केसेस में कुछ मशीन्स ऐसी भी हैं जहाँ पे पंच स्ट्रेस नहीं रहता है, डाई सीट को लेके साथ में ऊपर उठती है और वो वहाँ पर फोर्स अप्लाई करती है एंड यहाँ पर डिफॉर्मेशन हो जाता है। Okay, so it has written seat blank is positioned over the die and the punch apply the force to bend the seat and hence to form a shape. During bending, both tensile and compressive stresses are induced in the metal. This statement is very, very important. When we perform bending operation, you can see that this is the edge bending operation which is performed at one edge of the seat. In this case, you can see a dotted line. This line is basically representing neutral axis. In Yes, this sir. case, do you know what is the meaning of neutral axis? यस शायद सर, आप यहाँ लोगों पे ने सर पढ़ा कोई होगा। स्ट्रेस नहीं होता। यस सर, हाँ, कोई स्ट्रेस नहीं होता इस है यहाँ जगह पे। पे यदि अपन देखते हैं तो वहां पे कोई भी स्ट्रेस अप्लाई नहीं होती है। उसके ऊपर कुछ स्ट्रेस होगी इस मटेरियल, माने एक्चुअली क्या होगा, ये एक्सिस है और इस एक्सिस जाता हुआ एक प्लेन होगा, ठीक है ना। सो देयर विल बी अ न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन के ऊपर वाले एरिया में कुछ स्ट्रेसेस लग रही होंगी और न्यूट्रल प्लेन के नीचे वाले एरिया में भी यहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही होंगी। इस फिगर में आप देख सकते हो कि जब सीट इस प्रकार से बेंड होती है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस प्रकार का है। तो न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल प्लेन के नीचे का जो मटेरियल होता है, ठीक है ना, इसमें हमेशा यहाँ पे कंप्रेशन होता है और इसके ऊपर का जो मटेरियल होता है न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो मटेरियल होता है सीट मेटल का, उसमें हमेशा टेंशन होता है। तो यदि हम इसको इस शेप में बेंड करने लग जाएं, इसके ठीक अपोजिट, तो क्या होगा, ऊपर वाले पोर्शन में चूंकि कर्वेचर इस प्रकार से आ जाएगा, होगा नहीं होगा, यस कर्सर सर। तो उस केस में ऊपर वाले पोर्शन में जो कि न्यूट्रल एक्सिस के अंदर की तरफ आ रहा होगा वहां पे कंप्रेशन होगा और बाहर के मटेरियल में वहां पे क्या होगा, टेंशन होगा। सो इट इज रिटन दैट when we perform bending operation, in that case both tensile as well as compressive stresses are induced in the sheet metal. The metal on inside of the neutral plane is compressed and it is experiencing compressive stresses, while the metal outside the neutral plane is stressed or it is experiencing tensile stresses. ठीक है ना, तो दोनों स्ट्रेसेस यहाँ पर लगती हैं। न्यूट्रल प्लेन के दोनों तरफ दो प्रकार की स्ट्रेसेस लगती हैं। जहाँ पे कर्वेचर होता है तो जो एरिया सीट मेटल का जो पोर्शन न्यूट्रल एक्सिस के साथ कर्वेचर के अंदर है वहां पे हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही लगेंगी और बाहर के एरिया में, न्यूट्रल प्लेन के बाहर के एरिया में हमेशा टेंसाइल स्ट्रेसेस रहेंगी। इसको आप रट लेना, समझ लेना यहाँ पर। One important phenomena of the bending is spring back. Actually, what happens when we perform deformation onto the sheet metal or we are going to perform bending operation, in that case, the sheet is storing both permanent deformation, that means plastic deformation in it, and elastic deformation also. So when the force is released or the punch moves in upward direction, then slight spring back is occurred because of the release of the stored elastic energy into the it. ठीक है, so when bending is over, the residual stresses cause the material to spring back towards its original position. अब जो spring back होगा वो कितना होगा? So it is written it is hardly 4 to 5 degree, 4 degree to 5 degree. इसका मतलब होता है यदि हमने उसको बेंड किया, ठीक है, सपोज दिस बेंड एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है। तो जब ये पंच ऊपर जाएगा और ये सीट मेटल जो जिसकी बेंडिंग ऑपरेशन हो चुकी है ये फ्री होगी, तो उस केस में हल्का ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है ना, और ये जो मैक्सिमम चेंज आएगा वो कितना होगा, 4 to 5 डिग्री। सो दिस स्प्रिंग बैक in the case of bending is considered an angles and it is taken as 4 to 5 degree. So when bending is over, the residual stresses cause the material to spring back towards its original position. So the seat must be over bent to achieve the proper bend angle. This statement is very, very important. If we want to make or bend a seat in 90 degree, then we know that maximum bending angle or spring back will be 5 degree. So we have to design a die in such a manner that this angle should be taken as 95 degree. So we will go for bending the seat by 95 degree, but when this punch moves in upward direction and the release of stored elastic energy in the sheet metal occurs due to spring back action, in that case
it should be taken as 85 degree only. For bending a sheet in 90 degree, we have to design the die in such a way that bent angle should be taken as 85 degree only, and remaining 4 to 5 degree change in angle occurs because of spring back. ठीक है ना, समझ में आया? मैंने उल्टा बोला था अभी। यदि हम इसको 90 डिग्री के एंगल में बेंड करना चाहते हैं तो हम इसको करेंगे 85 डिग्री, ठीक है ना, और वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बैक की वजह से कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा वहां पर। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. एक्चुअली स्प्रिंग बैक होगा तो ये फैलेगा, ये पास में नहीं आएगा, इट विल एक्सपांड, तो एंगल यहाँ पे हल्का सा चेंज होगा। तो ये माना जाता है कि माने मैक्सिमम होता है किस केस में, किसी केस में 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 4-5 डिग्री। तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद अपन फिक्स करेंगे कि इसमें स्प्रिंग बैक यहाँ पे कितना आने वाला है। सपोज में स्प्रिंग बैक कितना है, 5 डिग्री का है, तो और हम 90 डिग्री पे सीट को बेंड करना चाहते हैं, तो हम कितना बेंड करेंगे, उसको 85 डिग्री तक बेंड करेंगे, और रिमेनिंग 5 डिग्री की जो एंगल बेंट एंगल मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, स्प्रिंग बैक फिनोमेना की वजह से होगा। ठीक है ना, तो ये दो फिगर आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और इसकी थ्योरी भी आपके यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ये वाला जो पोर्शन है, केस है, दिस इज द केस और एग्जांपल ऑफ एज बेंडिंग, EDGE एज बेंडिंग, एंड दिस इज द केस ऑफ वी बेंडिंग। अब यहाँ पे आपको कोई डाउट हो इस केस में तो बेंडिंग की थ्योरी से आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो। सर पंच और डाई के बीच में क्लियरेंस भी रहेगा क्या? क्लियरेंस इस केस में, यस। हाँ सर। इसमें हालांकि क्लियरेंस पता क्या माना जाता है, एक्चुअली ये जो ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। यदि ये पंच नीचे तक नहीं आ रहा है, कुछ हवा में यहाँ पे पूरा रुक रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन एयर बेंडिंग, अपन उसको आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन इस केस में जो क्लियरेंस है यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, थिकनेस के बराबर ही लिया जाएगा। ठीक है ना, you can see the difference in dimensions, the inside dimension of the die and outside dimension of the punch। तो इस केस को यदि अपन मेजर करते हैं तो हार्डली कितना रहेगा, दिस शुड बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द शीट। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा क्या है कि इंस्टेड ऑफ 4 mm थिकनेस वी कैन गो फॉर बेंडिंग अ थिकनेस शीट ऑफ 5 mm ऑल्सो, 3 mm ऑल्सो। तो इस केस में जो पंच का मूवमेंट रहेगा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्लियरेंस कितना आने वाला है। लेकिन बेंडिंग का जो क्लियरेंस बोला गया है वो बोला गया है इस सीट की लेंथ को, कि सीट मस्ट बी है दिस मच लेंथ। तो इसकी लेंथ, इसको अभी एक वीडियो मैंने देखा है उसमें लिखा हुआ है कि दिस क्लियरेंस इज टेकन एज लेंथ ऑफ द सीट मेटल विच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग पर्पज। इन जनरल यदि हम क्लियरेंस मानते हैं, जो कि गैप मानते हैं या डिफरेंस इन डायमेंशंस मानते हैं, तो यहाँ पे जो क्लियरेंस आ रहा है वो किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द सीट। ओके, हम उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं कि जो क्लियरेंस है वो सीट की थिकनेस के बराबर है, लेकिन कई बार ये जो क्लियरेंस बोला गया है वो किसके बराबर बोला गया है, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। सही तो क्या चीज है कि इस केस में जो क्लियरेंस हमें दिख रहा है, डिफरेंस इन डायमेंशंस में दिख रहा है, वो मटेरियल की या सीट मेटल ब्लैंक की थिकनेस के बराबर है। यही आंसर है। एनी अदर क्वेश्चन? आगे चलें। स्प्रिंग समझ में आ गया, टेंसिल कंप्रेसिव स्ट्रेस समझ में आ गई, डाई पंच समझ में आ गया। आगे चलते हैं बेटे अपन। नाउ वी हैव टू कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग ऑपरेशन। मैंने यहाँ पे एक लिंक आपको दिखाई हुई है, आप चाहो तो कॉपी कर लेना, इसको सर्च कर लें। वहाँ पे आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत प्रकार के बेंडिंग ऑपरेशंस पड़े हुए हैं, फ्रॉम विच यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बेंडिंग। आपको अलग अलग चीजें सीखने को वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है ना, एक्चुअली वीडियो डाउनलोड होगा लेकिन ये प्ले नहीं हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो प्ले नहीं हो पा रहा है। बहुत छोटा वीडियो है, 1.5-2 मिनट का है। इस प्रकार के बहुत सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी जिनसे आप बेंडिंग को समझ सकते हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बेंडिंग ऑपरेशंस आर क्लासिफाइड एज वी बेंडिंग, एज बेंडिंग, एयर बेंडिंग, बॉटमिंग और बॉटम बेंडिंग, रोल बेंडिंग, और एक और ऑपरेशन इसमें लिखा है विच इज नोन एज क्वाइनिंग। लेकिन क्वाइनिंग जो मैंने आपको कल पढ़ाया था और ये क्वाइनिंग, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना। वो क्वाइनिंग क्या है कि फ्रॉम दैट ऑपरेशन वी आर गोइंग टू मेक कॉइन्स, मेडल्स और सिमिलर आर्टिकल। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम यदि या तो अपन क्वाइन बेंडिंग लिखें या अकेला क्वाइनिंग लिखें तो उस केस में थोड़ा सा डाउट आता है। डाउट ये होता, अब इसको पहले समझते हैं कि ये हैं चीजें क्या, और इसका अपन बाद में डिस्कस करते हैं। इन दिस फिगर यू कैन सी 2 टाइप्स ऑफ बेंडिंग। इसके पहले भी आपको दिखाया था
कि यदि हम डाई की शेप और पंच की शेप बी के आकार की लेते हैं, जिससे यहाँ पे वी शेप में अपन सीट को बेंड कर सकें, तो उस केस में कहलाता है वी बेंडिंग। कुछ इसी प्रकार की होती है यू बेंडिंग ऑल्सो, मतलब उस केस में क्या होगा, यू टाइप की यहाँ पे एक कैविटी होगी और सिमिलरली यू शेप का हमारा क्या होगा, ये पंच होगा। तो सीट को बेंड करेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का वो ड्राइंग ऑपरेशन हो जाएगा। यू बेंडिंग ऑपरेशन इज सिमिलर टू अ ड्राइंग ऑपरेशन। ठीक है, आप इस ऑपरेशन को देख सकते हैं। दिस ऑपरेशन इज एज बेंडिंग वेयर सीट इज बेंट एट एन एंगल एट इट्स एज ओनली, वन एज ओनली। यहाँ पे अपन इसको बीच में कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम वी लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो सकता है या सिर्फ हटके भी कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एज बेंडिंग जब हमने परफॉर्म किए, इन दैट केस दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो व्हेन दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ द सीट, उस केस में अपन इसको बोलते हैं एज बेंडिंग। इसके केस में जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ अलग प्रकार का होता है, बिकॉज इन दिस केस यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज प्रेशर पैड। प्रेशर पैड इज नॉट नीडेड व्हाइल परफॉर्मिंग वी बेंडिंग ऑपरेशन। देखो इसमें कहीं पे आपको वी बेंडिंग में प्रेशर पैड इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीट जब ये फोर्स अप्लाई करेगा, सीट डिफॉर्म होगी तो ये इस शेप में आएगी, मतलब ये थिकनेस यहाँ पे एडजस्ट होगी और सीट ऐसे यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हम प्रेशर पैड अप्लाई नहीं करते हैं, सीट को वैसा डिफॉर्म होने देते हैं। बट व्हेन वी हैव टू परफॉर्म एज बेंडिंग, then in order to keep the seat in proper place, we have to apply certain force onto the seat metal using this pressure pad। ठीक है ना, प्रेशर पैड का अप्लाई करके वहां पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके ये सीट अपनी जगह पे रुकेगी और फिर जाके यहाँ पे एज बेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आर वी बेंडिंग, एज बेंडिंग, एयर बेंडिंग, बॉटमिंग, रोल बेंडिंग। अब अपन को इनको एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं आगे। यहाँ तो कुछ सबको समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं इसको नाम समझने में। फर्स्ट सर आ ऑपरेशन गया। वी बेंडिंग। ठीक है, तो जैसा पहले फिगर दिखाया गया था, दो फिगर मैं आपको शो कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट फिगर। इन दिस फिगर देयर आर टू पोर्शंस। इनिशियली द पोजीशन ऑफ द सीट मेटल ब्लैंक ओवर डाई इज शोन, पंच इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है ना, एंड इन दिस केस अ डिफॉर्म्ड सीट इज शोन। सो ये दोनों फिगर एक जैसे हैं। दिस इज डाई वर्क और सीट मेटल ब्लैंक। ठीक है ना, एंड दिस इज द पंच which is has applied to the force. So sheet metal blank is bent between a V-shaped punch and die. तो V बेंडिंग में अपन जो ऑपरेशन करेंगे उसमें जो पंच और डाई की शेप होगी वो V शेप की होगी। ठीक है ना, ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन अ प्रेस ब्रेक। अब प्रेस ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक प्रेस का मतलब क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, यदि आप फिगर देखोगे, सॉरी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, तो आप पाओगे कि जब ये बेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो जो ऑपरेटर रहता है वो फोर्स अप्लाई करता है प्रेस के द्वारा, और वो ऑपरेट होता है पैर से, मतलब लेग से ऑपरेट किया जाता है। वहाँ पे एक पैड रहता है, ब्रेक जैसा रहता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। उस केस में पंच डिसेंड होता है, वो सीट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और बेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये प्रेस वर्किंग ऑपरेशन है, सीट मेटल के ऊपर किया जा रहा है और एक पेडल जो कि ब्रेक जैसा रहता है उसके द्वारा अप्लाई किया जाता है। तो उस मशीन को अपन बोलते हैं प्रेस ब्रेक या ब्रेक प्रेस, दोनों नाम वहां पे आ सकते हैं। सो प्रेस ब्रेक इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग बी बेंडिंग ऑपरेशन। बी बेंडिंग है, एज बेंडिंग है, बहुत सारे टाइप के जो बेंडिंग ऑपरेशन होते हैं उनको प्रेस ब्रेक मशीन के ऊपर अपन यहाँ पे कर सकते हैं। रोल बेंडिंग यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। रोल बेंडिंग के लिए रोल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि रोटेट होते हैं वहां पर। ठीक है, V dies used in this case are simple and less costly or inexpensive. ठीक है, and operation is used for low production. एक्चुअली अपन इसके वीडियो देखोगे तो धीमे धीमे इसको करना पड़ता है, तो लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर एंड यदि अपन एज बेंडिंग देखेंगे तो वो ऑपरेशन जल्दी परफॉर्म हो जाता है और उसके मास प्रोडक्शन के लिए, हायर प्रोडक्शन के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस इज सिंपल थ्योरी ऑफ द बी बेंडिंग। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। Then comes the edge bending। फिर से अपन ने वही फिगर कंसीडर किए हैं। दिस इज द सीट मेटल ब्लैंक, इनिशियली ये स्ट्रेट रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, वाइप डाई एंड द पंच। अब वाइप डाइप क्या है, ये क्या होता है जिसमें पंच साइड से मूव करता है यहाँ पे। ठीक है ना, आप किसी इसके पहले भी आपने फिगर देखा होगा, ये वाला फिगर भी देखा होगा। तो पंच डाई के अंदर नहीं जा रहा है, साइड से एज से होकर टच होकर इससे निकल रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर पैड एसेंशियल
होता है, जरूरी होता है, इसके बगैर आप एज बेंडिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही आप मान लो आपने प्रेशर पैड अप्लाई नहीं किया एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एज बेंडिंग ऑपरेशन, ठीक है, सो एज सून एज दिस पंच अप्लाई द फोर्स ऑन टू दिस सीट मेटल, तो उस केस में ये सीट यहाँ पर स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इतने पोर्शन को हमें डिफॉर्मेशन नहीं कराना है, ठीक है ना, तो हम इसको टाइटली रिजिडली हेल्ड करेंगे बाय यूजिंग द pressure pad. So pressure pad is necessary in this case. The sheet metal plank is kept bent on a die. Die uses a biping die. ये हमेशा याद रखना। V बेंडिंग में V डाई इस्तेमाल होती है, U बेंडिंग में U डाई इस्तेमाल होती है, और एज बेंडिंग के लिए वाइपिंग डाई इस्तेमाल होती है। ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन अ प्रेस ब्रेक। डाइज आर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव, थोड़ी सी उन्होंने लिखा है कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। ऑपरेशन इज जनरली फॉर परफॉर्मिंग हाई प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब इन दोनों में यदि आपको कोई डाउट हो एज बेंडिंग वी बेंडिंग में, तो आप इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिगर तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 5-6 स्टेटमेंट आप लिखोगे यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सर कोई वाइपिंग डाउट? डाइट मतलब सर वाइपिंग डाइट मतलब सिंपल इस उसमें डाई कोई का नाम है, हाँ डाई का नाम है, इसका नाम वाइपिंग डाई लिखा गया है। एक्चुअली क्या होता है, जिस प्रकार की बेंडिंग अपन करनी है इस प्रकार की शेप यहाँ पे बनानी पड़ती है, और ठीक है ना, इसलिए लिखा गया है कि थोड़ी सी कॉस्टली होती है, इसकी डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड होती है। नॉर्मली जो वी बेंडिंग की डाई होती है उसमें 20 स्लॉट बना होता है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं होता वहां पर, ठीक है, इसलिए लिखा गया है कि ये सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। आगे चलते हैं। एयर बेंडिंग। अब देखना, जो वी बेंडिंग है उसी का एक केस क्या है, एयर बेंडिंग है, और उसी का एक केस क्या है, बॉटम बेंडिंग या बॉटमिंग है। आपको सिर्फ फिगर पे ध्यान देना है। एयर बेंडिंग का केस कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें पंच डिसेंड होके नीचे तक नहीं आता, यहाँ पे खाली ईयर बची रहती है, मतलब खाली गैप यहाँ पे बचा रहता है। दिख रहा दोनों केस में आपको? यदि अपन वी बेंडिंग का केस यस सर। देखेंगे तो इसको नीचे तक प्रेस करता है, इसको कंप्लीट प्रेस करता है, ठीक है। और यस सर। एयर बेंडिंग के केस में क्या होता है, ये इसको नीचे तक प्रेस नहीं करता है। तो आप इन दो फिगर से किसी से भी आप इसको समझ सकते हो। बेंडिंग फोर्स इज गोइंग टू अप्लाई बाय द पंच, sheet metal is deformed, but sheet metal does not comes in contact with the complete surface of the die। मतलब यहाँ पे इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है कि हल्का से यहाँ पे बेंडिंग हो जाए, उसको अपन बोलते हैं एयर बेंडिंग। इन दिस बेंडिंग मेथड फॉर्म्स मटेरियल बाय प्रेसिंग अ पंच, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अपर डाई, लोअर डाई, कोई दिक्कत नहीं है, and forcing it into a bottom B die which is mounted on the press. The punch does not force the seat to the bottom of the die cavity, leaving air or space underneath, hence called air bending। मतलब ये इसमें इतना फोर्स अप्लाई करता है कि यहाँ पे खाली जगह बची रहती है, स्पेस बची रहती है, इसकी वजह से इसका नाम होता है एयर बेंडिंग। या तो वहाँ पे स्पेस है और एयर भी है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं एयर बेंडिंग, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया आपको एयर बेंडिंग और वी बेंडिंग में। ऑलमोस्ट उसी प्रकार की डाई यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। दोनों केस में प्रेशर पैड की आवश्यकता नहीं है, पंच भी उसी प्रकार का है, लेकिन पंच का मूवमेंट हमने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जब ये डिफॉर्मेशन करा रहा है तो इसमें अब जो सीट रहेगी इसमें दोनों प्रकार का डिफॉर्मेशन स्कोर्ड है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी है, लेकिन ये सीट इस पॉइंट तक बियॉन्ड, मतलब इस पॉइंट तक यहाँ पे डिफॉर्म नहीं की गई है, मतलब पंच इतना नीचे नहीं आया कि सीट को लेके यहाँ तक पहुंच जाए। यदि ये इतना डिफॉर्मेशन यहाँ पर करा देता तो ये वी बेंडिंग हो जाएगी, अदरवाइज इट इज एयर बेंडिंग। The punch forms the bend so that the distance between the punch and the side wall of the V is greater than the material thickness। ठीक है, ये इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। आगे चलते हैं। दिस इज बॉटम बेंडिंग, समटाइम्स इट इज रिटन एज बॉटमिंग ओनली। बॉटम बेंडिंग या बॉटमिंग में क्या होता है, जो पंच रहता है, हालांकि गैप दिख रहा है, गैप ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे, ये फोर्स अप्लाई करता है कहाँ तक, इसके कंप्लीट डिफॉर्मेशन तक, ठीक है ना। द सीट इज फोर्स्ड अगेंस्ट द बी ओपनिंग इन द डाई बाय अ पंच। तो ऊपर भी होता है, लेकिन यहाँ पर पंच इतना फोर्स अप्लाई करता है कि ये इसके बी शेप तक यहाँ तक आ जाता है। इन द प्रोसेस द पंच प्रेसेस द रेडियस ऑफ इट्स टिप इनटू द सीट प्लैंक। रेडियस ऑफ टिप इसमें करता है और उसको वही शेप इसको देता है। The optimum width of the V opening is 60, दो जगह ली गया है, ये 60 भी है और 12 भी है। For thickness of the seat up to 3 mm it is taken as 60 where T stands for
थिकनेस ऑफ द शीट मेटल प्लैंक। यदि ये थिकनेस 12 mm के करीब है, 3 mm से ऊपर है, तो इसको लिया गया है 12T। ऑप्टिमम विड्थ ऑफ द वी ओपनिंग, विड्थ मतलब ये डिस्टेंस, इट इज टेकन एज दिस मच। द बेंडिंग रेडियस मस्ट बी एटलीस्ट 0.8T to 2T। अब बेंडिंग रेडियस कौन सी है? ये वाली है, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको आप देख सकते हो, उसके लिए बेंडिंग रेडियस लिखा गया है, एंड दिस बेंडिंग रेडियस इज 0.8 टाइम्स द टी। यदि इसकी थिकनेस 5 mm है तो ये 4 mm से लगा के 2T कितना हो जाएगा? 10 mm तक हो जाएगा। तो ये 4 mm टू 10 mm कुछ भी हो सकता है फॉर अ शीट ऑफ 5 mm थिकनेस। ओके, तो वी बेंडिंग सॉरी एयर बेंडिंग और बॉटम बेंडिंग में क्या होता है? सिर्फ एक ही डिफरेंस वहां पे अपन को दिखता है कि एयर बेंडिंग में पंच इस प्रकार से डिसेंड होता है, फोर्स अप्लाई करता है कि वो सीधे नीचे मतलब उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है जो शीट मेटल प्लैंक होती है डिफॉर्मेशन के बाद मेटलिक डाई मेटल के साथ कंप्लीट, ठीक है। और वहां पर नीचे कुछ स्पेस या एयर वहां पर बची रहती है, इसको अपन एयर बेंडिंग बोलते हैं। बॉटम बेंडिंग में क्या होता है? एक कंप्लीट इसकी सरफेस आती है नीचे यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? बॉटम बेंडिंग सर वी शेप देखिए और इसमें फिर अंदर क्या है सर? हाँ सर, देखो अंतर इसमें कुछ नहीं है, वही डाई है, वही पंच है, लेकिन बेंडिंग हमने कैसी की है कि यहाँ पे ये नीचे तक टच नहीं हो रही है, मतलब ये डिसेंड नहीं किया है, ये एंगल यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। दिस इज मोर देन 90, ये इसके एंगल से भी ज्यादा है। सपोज ये जो डाई है, दिस डाई इज हैविंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब इसको यदि कंप्लीट यदि हम बॉटमिंग करेंगे तो जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 90 डिग्री का आएगा। लेकिन जब हम एयर बेंडिंग करेंगे तो 90 डिग्री की डाई से 90 डिग्री से अधिक एंगल बना सकते हैं हम। ये एंगल अभी कितना है? इट इज मोर देन 90 डिग्री। उस केस में क्या हो रहा है? नीचे यहाँ पे खाली स्पेस है, ठीक है ना, ये नीचे तक नहीं आया हुआ है यहाँ पे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो ये एयर बेंडिंग है। यदि ये नीचे तक आ जाएगी, ठीक है, जिसमें यदि 90 डिग्री की डाई तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? ये बॉटम बेंडिंग या बॉटमिंग। आ गया समझ में डिफरेंस? नहीं सर, भी बेंडिंग में भी तो ऐसे ही होता है सर। हाँ सर, दोनों वी कोई चीज बेंडिंग है, और इसमें। ये वी बेंडिंग के स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस से भी बेंडिंग है ना आओ, सर? हाँ, ऐसे यू बेंडिंग होती है। यू बेंडिंग में क्या होगी? तो डाई यू शेप की हो जाएगी वी के अलावा, वहां पे वो यू बेंडिंग बोल देंगे अपन उसको, ठीक इसको है। सर मैं वी बेंडिंग बोल सकते हैं ना? वी बेंडिंग यस यस ऑफ बॉटम कोर्स, बॉटम इट इज द केस ऑफ वी बेंडिंग, इट इज अ केस ऑफ वी बेंडिंग। वी बेंडिंग में बॉटम बेंडिंग हो सकती है, एक क्वाइनिंग वर्ड भी आता है, क्वाइन बेंडिंग जिसको बोला जा सकता है, ठीक है ना। और एक होता है अपना ये एयर बेंडिंग, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब जल्दी से, ये तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज लिखा है ग्रेटर एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेस स्प्रिंग बैक होता है इस केस में। बट ये डिसएडवांटेज है कि हर प्रकार की सीट के लिए अपन को, यदि आप इसी से बनाना चाहते हैं तो उसके अनुसार हमें डिफरेंट डाइज लेनी पड़ेंगी, अलग अलग एंगल के लिए हमें डिफरेंट टाइप की डाई लेनी पड़ेगी। जल्दी से आखिरी चीज देख लेते हैं, विच इज रोल बेंडिंग। रोल बेंडिंग का मतलब होता है कि ये रोलिंग करा के हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था कि जितने भी ऑयल स्टोरेज टैंक्स होते हैं वो शीट मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो शीट मेटल को हम क्या करते हैं? बेंड करते हैं, और फिर बड़े बड़े जो ऑयल स्टोरेज टैंक्स आपने देखे होंगे जिसका डायमीटर 20 मीटर हो सकता है, हाइट भी 10 मीटर 10 फीट हो सकती है, 20 फीट हो सकती है, तो उसमें हम इंडिविजुअल सीट को बेंड करते हैं बाय रोल बेंडिंग। इसमें रोटेटिंग रोल्स होते हैं, ठीक है ना, और ये रोटेटिंग रोल्स इनको ये मूव करते हैं सीट को आगे की तरफ, और बीच में लगाता है रोलर, इसके थ्रू ये प्रेस किया जाता है और एक पर्टिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर को मिलता है, ठीक है। So roll bending process includes it induces a curve into the sheet metal. Plates are bent using set of rolls. Various curvature can be obtained by adjusting the distance. ये distance अपन जितनी ज्यादा कम करते रहेंगे, ठीक है ना, उतने अलग अलग प्रकार के एंगल आपके यहाँ पे रोल बेंडिंग के द्वारा मिलता रहेगा, ठीक। अब आपको यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड द टॉपिक इज ओवर। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बहुत कम टाइम अपने पास यहाँ पे बचा हुआ है। सर ये रोल बेंडिंग में सर फिर मतलब इतना रोलिंग कर्व करते हैं कैसे सीट मिलता को, है सर? कर्वेचर दिए